God, dear brothers and sisters. प्रभु की स्तुति हो और आप सभी को विजय मसीह की भाई और बहनों। I praise God and thank Him for this wonderful opportunity which Lord has given to share the word of God. और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनकी स्तुति करना चाहता हूं जो उन्होंने मुझको मौका दिया आप सभी के सामने बैठ के और प्रभु का वचन को बांटने के लिए। Thank Brother Rajendra Singh for giving me this opportunity to share the word of God. और भाई राजन का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने मुझे मौका दिया परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। Today we will be seeing a very familiar situation which is going on in India in today's world. और आज हम जो विषय के ऊपर वार्तालाप करने वाले हैं वो आजकल के समय में हम काफी देख रहे हैं, हमारे भारत देश में वो चल रहा है That is persecution. और वो है सताव। Beloved brothers and sisters, the persecution is increasing in the world, in India also. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो सताव है इस पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है और खासतौर पर हम देखते हैं भारत में भी बढ़ता जा रहा है। In India, the persecution is increasing because Lord's people are very few, and worldly people are more. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं सताव इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो प्रभु के लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, काफी कम है और जो अन्य जाति के लोग हैं वो काफी ज्यादा है। Today we will see how should a Christian respond to persecution. और आज हम देखेंगे और जानेंगे कैसे हम उस सताव का सामना कर सकते हैं। As I said, these days we hear and see many persecutions to believers throughout India. और जैसे कि अभी हमने कहा कि जो पूरे भारत देश में है और जो सताव चलता आ रहा है और विश्वासियों के सामने काफी मुश्किल घड़ी हो रही है। I will not take across the world because it will be my message will be more bigger than it. The time will not sufficient. और हम पूरा दुनिया के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि जो सब्जेक्ट जो विषय है वो काफी बड़ा हो जाएगा। So, dear brothers and sisters, persecution is a stark reality of living the Christian life. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो सताव है, सताव एक गहरा और अंधेरा जो जीवन जीने का तरीका है जो प्रभु जो मसीही और विश्वासी लोगों के लिए। There is a key biblical teaching on persecution. और हम देखते हैं जो जो सताव है और सताव का जो काफी पीड़ा और जो इट्स अंकल बेब्लिकेशन Pardon me. बेब्लिकेशन, यू हैव सेड बेब्लिकेशन। Am I audible, brother, to you? Your voice is little less. या वॉइस इज ग्लिटरिंग समटाइम। Okay. No problem. So we will see some 6 points in a short, and then we will go into a message. और आइए हम 6 बिंदु की ओर जाएंगे और वो काफी छोटे छोटे होंगे, उसके बाद हम अपना विषय के ऊपर जाएंगे। Before that, I would like to read one verse. उसके पहले हम एक वचन पढ़ेंगे। 2 Timothy chapter 3, verse 12. और दूसरा तीमुथियुस का 3 अध्याय उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। Brother, you can read in Hindi, then I will read in English. ओके। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। Here we read in English, yes, and all who desire to live godly, godly in Christ Jesus and in Christ Jesus will suffer persecution. Here we see that the word is beginning with yes. और हम यहाँ पे देखते हैं जो दुनिया है वो से एक पीड़ा के साथ है। No, brother, listen.
carefully first, then you will translate. I said that the verse here, verse 12, is beginning with the word yes. और हम यहाँ पे देखते हैं जो इस वचन का जो शुरुआत हुई है वहां पे पर के साथ शुरुआत हुई है, ये के साथ। Because there is something mentioned about persecution in verse 10 and 11 also. और हम क्योंकि इस वचन के बारे में देखते हैं, जो पीड़ा सताव के बारे में 10 और 11 वचन में भी हम वहां पे देखते हैं। What does it say? और वहां पे ये क्या बोलता है वचन? I will read verse 10 and 11 also. और हम 10 और 11 भी पढ़ेंगे। But you have carefully followed my doctrine, manner of life, purpose, faith, long suffering, and love, perseverance, persecution, afflictions, which happened to me in Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecution I I endured, and out of them all the Lord delivered me. और उस 10 और Read, 11 brother. 10 और 11 वचन में लिखा है, पर तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। और ऐसे दुखों को मैं भी जो अंताकिया और इकोनियम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। Beloved brother, can I know who is speaking here in verse 10 and 11? और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे 10 और 11 वचन में कौन वचन को बात कर रहा है, कौन बोल रहा है? Who is speaking here? और यहाँ पे कौन बोल रहा है? Can anyone open mic and tell? और कोई भाई या बहन अपना माइक खोल के बोल सकते हैं। ये जो वचन है 10 और 11, ये किसने कहा है और किसको कहा है? No one to answer. कोई जवाब नहीं देना चाहते क्या? I think I should request all the brothers and sisters to open your cameras. Camera off. That means you are not present in the meeting. और मैं सबसे Please, विनती और मैं सबसे yes, विनती Rahul, speak. अ, और मैं सबसे विनती करता हूँ कि आप सब यहाँ पे कैमरा खोल के बैठिए, ताकि आप हमको पता लगे कि आप सुन रहे हैं और इसमें आप ध्यान दे रहे हैं आज का वचन में। Beloved brothers and sisters, we should always remember one thing: we should respect the Lord. In prayer, if you off the camera, that is fine. But when the word of God is going on, you should on your camera. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जो प्रभु का जो वचन को जब सुनते हैं, आपका कैमरा खोलना या नहीं खोलना जरूरी नहीं है, लेकिन आपका वचन को सुनने के लिए और उस पर ध्यान लगाने के लिए आपको, अब अगर आप कैमरा खोल के बैठते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। And thank you to some brothers and sisters who have on their cameras. और मैं कुछ भाई और बहनों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना कैमरा खोला है। So, dear brothers and sisters, dear Paul is speaking to Timothy. The epistle of Timothy is written by Paul to Timothy. Am I right और or wrong? और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम यहाँ पे देखते हैं पौलुस तीमुथुस से बोल रहे हैं, और जो तीमुथुस की पत्री है, तीमुथुस का जो है वो पौलुस ने वहाँ पे लिखा हुआ है तीमुथुस के लिए। क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ? Am I right or wrong? Please answer me. आप में से कोई भी जवाब दे सकते हैं कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। Brothers and sisters are not sure whether I'm telling right or wrong. और मुझे लगता है भाई और बहनों, आप एकदम श्योर। Anyway, we will.
I think brothers and sisters are not ready for the question and answer or interaction session. I always like to take Bible study with an interaction session. और प्यारे भाई और बहनों, शायद मुझे लगता है कि आप लोग को वार्तालाप करने में या फिर प्रश्न और उत्तर देने में इतना इंटरेस्ट नहीं है। और So अंकल। here Paul is encouraging Timothy, and he's saying that I have I have experienced the persecution at different places. और हम यहाँ पे वचन के अनुसार देखते हैं पौलुस तीमुथियुस से बोल रहे हैं और वहां पे वो अपना अनुभव बता रहे हैं कि जब वो अलग अलग जगह पे प्रभु का सुसमाचार के लिए जाते तो इतना सताव और पीड़ा का उनको सामना करना पड़ता था। Why did he experience the persecution that he mentions in verse 10? Because he followed the doctrine. और यहाँ पे जो पौलुस है वो क्यों सताव का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं 10 वचन में, और क्योंकि वो सिद्धांत को के ऊपर चल रहे हैं। Manner of life and purpose. हम हम देखते हैं क्या वो जीवन के बारे में या फिर जीवन का मकसद के लिए। Beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे राहुल भाई। भाई immediately translation करो, अ, टाइम कम है ना। जी। So मेरे dear प्यारे। brothers and sisters, persecution, as I said, is a stark reality of living the Christian life. और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे मैंने आपको कहा कि जो सताव है और जो पीड़ा है, ये बहुत काला समय है और बहुत गहरा है कि हम प्रभु का विश्वास में इस दुनिया में रह रहे हैं। As I said, I would like to start my message with few words, with few points, which is a key biblical teachings on persecution. और मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं आपको 6 जो बिंदु हैं आपको बताऊंगा, जिससे आप बाइबल के वचन के अनुसार उस जो सताव है, पीड़ा के बारे में जान सकते हो और उससे निकलने का तरीका है। First one is that it is an expected reality for every believer to face the persecution. और जो पहला बिंदु हम देखते हैं कि सारे विश्वासियों के लिए है, जो कि उनको सताव का सामना करना ही पड़ता है। Here, the persecution which is expected is not only when we are doing the gospel work. और यहाँ पे हम देखते हैं जो सताव का सामना विश्वासियों को करना पड़ता है, क्या अगर वो वचन को नहीं बांटते हैं तब भी। The persecution can be from various places and from different situations. और हम देखते हैं जो सताव है, पीड़ा है, वो अलग अलग जगह पे भी और अलग अलग स्थिति के अनुसार भी होती है। Now, many people face persecution in their office. और हम देखते हैं आजकल के समय में कि बहुत सारे जो विश्वासी लोग हैं अपना जो दफ्तर में भी सताव का सामना करते हैं वो लोग। I have experienced the persecution in my office. और अंकल को भी हम देखते हैं कि उन्होंने भी अपना सताव का सामना करना पड़ा है अपने ऑफिस में, दफ्तर में। As my boss, when I had joined newly in my government job, और जब अंकल ने अपना नया नया नौकरी को ज्वाइन किया था, सरकारी नौकरी को। my boss was very strict and she was very hardcore idol worshipper. और जब हम देखते हैं कि उनका जो कार्य था काफी कठिन था, और जो काम वो करते थे उस नए नए समय पर काफी जो मुश्किल था उनका लिए। And from the day one of my office till today, I have one habit of I have one habit in me. और जब हम देखते हैं कि अंकल जी का जब शुरुआत से पहले दिन से लेके ऑफिस का और आखिरी अभी भी चल रहा है, उस तरह उनकी एक That आदत। habit is that habit is when I go to office, I don't speak with anyone. First, I keep my bag and then I pray first and then I say hi, hello, good morning to everyone.
और अंकल की एक आदत है कि जब भी वो ऑफिस जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, तो वहां पे वो किसी से बात नहीं करते हैं, जब बल्कि वो पहले प्रार्थना करते हैं, उसके बाद वो किसी से हाय हेलो करते हैं। That point was not liking to my boss. और ये जो बिंदु है, ये अंकल की बात है, खास बात है, ये उनके ऑफिस के बड़े सीनियर को पसंद नहीं है, उनके बॉस को पसंद नहीं है। She used to say, "You're praying, you're praying. Will your God save you from me?" और वो वहां पे उनके बॉस अंकल को बोलते हैं कि अगर आप तुम प्रार्थना कर रहे हो तो क्या तुम्हारे जो भगवान है, तुम्हारे परमेश्वर है, क्या मुझसे बचा सकते हैं? No one can save you from me. और वहां पे वो बोलते हैं कि कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। She troubled me a lot, beloved brothers and sisters. और वो अंकल के बॉस अंकल को काफी पीड़ा में रखते हैं। But God is always good, and He kept me safe throughout her tenure. और हम देखते हैं यहाँ परमेश्वर एक बहुत प्रिय और प्रेम करने वाले परमेश्वर हमेशा अंकल के जो साथ में रहते हैं, और वो जो सताव है, पीड़ा को उनको सामना करने की हिम्मत देते हैं। So, beloved brothers and sisters, persecution is the expected reality for every believer. और तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो सताव है एक सारे विश्वासियों के सामने एक होने वाली जो चीज है वो हो सकती है। As we were distributing tracts in one place, और जब अंकल जी एक समय पे एक बार की बात है, अंकल जी एक फ्लावर को बांट रहे थे। one person came and asked me what you are distributing. और एक व्यक्ति वहां पे अंकल जी से आके पूछा कि तुम क्या बांट रहे हो? I told him this is about the love of God. You read it, you will understand about the Lord Jesus Christ. और वहां पे अंकल जी ने उस व्यक्ति से कहा कि ये प्रभु के वचन की जो किताब है, आप इसको पढ़िए, आप प्रभु के बारे में जान सकते हो। And the Lord will save you. और परमेश्वर आपको बचाएंगे। परमेश्वर नहीं, प्रभु आपको बचाएगा. प्रभु आपको The बचाएंगे। Lord will save you. प्रभु आपको बचाएंगे। What did he say to me? You know, beloved brother. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आपको मालूम है उन्होंने उस व्यक्ति ने अंकल से क्या कहा? I was in my way on my wheelchair. He told me, next time if you come in this area, I will hang you on the tree upside down. और उस व्यक्ति ने अंकल जी से कहा कि जब अंकल जी अपने उस व्हील चेयर पर थे, तो उस व्यक्ति ने कि अगली बार आप इस एरिया में आओगे, इस जगह पे आओगे, तो मैं आपको उल्टा लटका दूंगा पेड़ से। I glorified God and I said, thank you so much. I said to that person and I moved from there. और अंकल जी ने प्रभु का महिमा किया, और उसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति को प्रभु को धन्यवाद दिया, और उसके बाद वहां से अंकल जी चले गए। Beloved brothers and sisters, the persecution, we should, as a believer, we should not get scared of the persecution. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप सताप का सामना करते हो तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। Because many verses are there which encourages us and tells us that Lord is with us. और बहुत सारे वचन हैं जो वहां पे प्रभु का वचन है, हमको बोलता है कि वो जब सताव हमारे सामने आएगा तो वचन से हमको हिम्मत मिलेगी। Every Christian should expect the persecution if she wants to live a godly life. और हर व्यक्ति को, जो विश्वासी है, उसको जीवन में जो सताव आता है, जिससे आप और भी अच्छी रीति से जो मसीही जीवन को बिता सकते हैं। Persecuted believer who lives a godly life cannot say that I will not face persecution. और जो व्यक्ति जो प्रभु का जो जीवन, जो मसीही जीवन अच्छी रीति से जीता है, तो ऐसा नहीं बोल सकता कि वो मैं सताव का सामना नहीं करूंगा। Beloved and sisters, so the first point is an expected reality of for every believer. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो पहला बिंदु हम देख सकते हैं कि जो मसीही लोगों के लिए सच्चाई जब होती है, जो जो उनके जीवन में जो
सच्चाई के बारे में हम देखते हैं कि ऐसा उनको सामना करना पड़ता है। Yes. So the thing is like that, beloved sisters. So we need to be ready. Any moment, any time, the persecution may come to us. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको किसी भी जगह, किसी परिस्थिति, हमको तैयार रहना है, क्योंकि कभी भी सताव हमारे ऊपर आ सकता है। What is the second biblical teaching on persecution? और दूसरा बिंदु हम देखते हैं वहां पे क्या हमको वचन के अनुसार क्या देखने के लिए मिलता है। It is a path. It is a path to blessing. और हम देखते हैं वहां पे एक मार्ग है आशीष का। Those who are persecuted, they will be blessed and rewarded in God's kingdom. और हम देखते हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा सताव का सामना करता है, वो प्रभु के राज्य में, स्वर्ग में उसको जाना इनाम मिलेगा। And that reward will not be an ordinary reward. It will be a very special reward from God. और जो इनाम है जो प्रभु के राज्य में, वो एक साधारण इनाम नहीं होगा, वो बहुत खास इनाम होगा उस व्यक्ति के लिए। Third point is that uh, we get the if we face the persecution, we get the opportunity to share the witness with our fellow believers. और जो तीसरा बिंदु हम देख सकते हैं वहां पे, ये है कि जग अगर हम सताव का सामना करते हैं, तो हमारे जीवन में एक अनुभव के रूप में हम अपने विश्वासी भाई को भी बता सकते हैं कि देखो सताव के साथ मेरे साथ क्या हुआ। And that your witness may encourage other believers to serve the Lord and to live a godly life. और हम देखते हैं कि उस जो अनुभव होगा उसके कारण दूसरे जो व्यक्ति है मसीही जीवन जो बिता रहा होगा, उसके जीवन में काफी प्रभाव पड़ेगा, और वो अपना जीवन को अच्छी रीति से मसीह के अनुसार चला पाएगा। Now, the fourth point we see that it is a sign of following Christ and obedience. और जो चौथा बिंदु हम देख सकते हैं, वो है कि हमको प्रभु के अनुसार और प्रभु में आज्ञाकारी और प्रभु में अच्छी रीति से जीवन बिताना है। Those who follow Christ, they are only called as Christians. और जो व्यक्ति पर प्रभु को उनके पीछे चलते हैं, वो एक विश्वासी और मसीही लोग होते हैं। And those who obey the commandment, that is the sign of the persecution we face. और हम देखते हैं जो व्यक्ति प्रभु का आज्ञा को मानते हैं, वो हम देखते हैं वो एक चिन्ह होता है सताव के लिए। Next thing is that God's presence and support. और उसके बाद हम पांचवा बिंदु देखते हैं कि प्रभु की ओर से मदद। When we are persecuted, beloved brothers and sisters, many times we feel that we are alone, we are betrayed from everyone. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम सताव का सामना करते हैं, तब हमको ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, हमको अलग कर दिया गया है और कोई व्यक्ति हमारे साथ नहीं है। Sometimes we feel that we are living a Christian life. Am I doing anything wrong? That this persecution has come in my life. और कभी कभी हमको लगता है कि हमको महसूस होता है, क्या मैं मसीही जीवन बिता रहा हूँ, क्या ये गलत है, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सताव और पीड़ा आ रही है। Beloved brothers and sisters, when you are persecuted, you are never alone. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भी आप सताए जाएंगे, आप कभी भी आप अकेले नहीं रहेंगे। God's presence and His support is surrounded. और प्रभु आपके साथ हमेशा उपलब्ध रहेंगे, और उनका जो मदद है, सहायता है, आपके चारों तरफ रहेगी। God allowed God allowed to face your persecution because He thought that you are the well-deserved child of God. और प्रभु के अनुसार, प्रभु की अनुमति के अनुसार हम जो सताव है उसका सामना करते हैं, क्योंकि प्रभु को लगता है हम उनके जो बच्चे हैं, और इस सताव को वो सहन कर सकते हैं हम लोग। Why did God send His only begotten Son for the salvation of the mankind? और मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्यों परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को इस धरती पे मरने के लिए भेजा, इस मानव जाति का उद्धार कराने के लिए।
There were so many angels and so many well honored angels. God would have sent them for the और salvation of the mankind. और परमेश्वर अपने बेटे की जगह कोई भी स्वर्गदूत को या फिर उनके जो आसपास रहने वाले लोगों को, आसपास के स्वर्गदूतों को इस धरती पे क्यों नहीं भेजा? क्योंकि जो मनुष्य का उद्धार कराने के लिए। Or God would have uttered one word and the entire mankind would have saved. और वहां पे क्यों परमेश्वर ने अपने एक पुत्र को भेजा और पूरा जो मानव जाति है पूरा सुरक्षित हो गया, बच गया? But God, in God's sight, His only begotten Son, Lord Jesus Christ, was the deserving person for the salvation of the mankind. क्योंकि परमेश्वर के लिए उनका एक लौता पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह वो उस चीज को डिजर्व करते थे, और इसी कारण से उन्होंने इस धरती पे और अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि पूरा मानव जाति उद्धार पाने पाए। If Brother Richie is sharing the is having persecution, it is because God thought that my child Richie is deserving to get the special reward from God. और हम यहाँ पे एक उदाहरण से रूप से और देख सकते हैं कि जैसे प्रभु ने ऋषि अंकल को एक शताब के पीड़ा में उनको स्थिति में रखा, और उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि जो ऋषि अंकल हैं यानी कि वो उस शताब को सहन कर सकते हैं, या फिर वो उस इनाम के लिए जो प्रभु के परमेश्वर के स्वर्ग में है वो पाने के लिए। Now we'll read one verse, John chapter 15. और आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 15 अध्याय। John chapter 15, verse 18 to 20. और 15 अध्याय का 18 से लेके 20 तक हिंदी में मैं पढ़ूंगा। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है कि इसी लिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो मैं भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। What does this word is very much clarifies why believers are persecuted. और यहाँ पे ये वचन पूरा अच्छी रीति से कैसे साफ करता है कि कैसे मसीही लोग सताए जाते हैं। It says if the world hates you, you know that it hated me first. और यहाँ पे हम देखते हैं कि वहां पे लिखा हुआ है वचन में कि उसको याद रखो, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। Now, what does it say that before it hated you, it hated me. और वहां पे वचन में बोलते हैं कि जो मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताए जाएंगे, तुम भी सताए जाएंगे। Because brothers and sisters, uh, we are bound to be persecuted. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जो सताव में बंधे हुए हैं। But now the verse 15, I would request brother to read again. Verse 18, sorry. John chapter 15, verse 18. और आई हम यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 18 वचन एक बार फिर से पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। It says Lord is clarifying it that it hated me before it hated you. और यहाँ पे अच्छी रीति से वचन हमको साफ तरीके से बता रहे हैं कि 18 वचन में कि संसार ने मुझसे पहले बैर रखा तो तुमसे भी बैर रखेंगे। The word of God tells us to carry the cross in this world. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे जो वचन हमको साफ रीति से बता रहे हैं कि जो संसार है जो तुमसे बैर रखता है, तो तुम जानते हो कि उसने उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है।
The word of God tells us, the Lord says in some verse, due to shortage of time, I'm not going there. It says that you need to carry the cross. और हम ये देखते हैं वचन के अनुसार, अभी जाना समय नहीं है, तो हम सीधे इस पे जाएंगे कि हमको जो हम जो क्रूस के साथ हम बांधे हुए हैं। What does it mean to carry the cross? और ये क्रूस को उठाना, ये इसका मतलब क्या है? To carry the cross is to experience the persecution. That is one part of the cross. और जो क्रूस को उठाकर उसके साथ उसको ले जाना, ये एक मतलब होता है कि जो सताव और पीड़ा को सहन करना। Beloved brothers and sisters, if we are not experiencing the persecution, how can we experience the Lord's suffering on the cross of Calvary? और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप सताव को महसूस नहीं कर पाएंगे, उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे, तो आप कैसा अनुभव करेंगे कि जो प्रभु उस समय हमारे लिए मारे गए थे। Beloved brothers and sisters, John chapter 15, verse 20, it tells us, और मेरे प्यारे भाई और बहनों, योहन्ना उसका 15 अध्याय 20 वचन हमको बोलता है। it clarifies that those of the world will hate Christians because the world hates Christ. और हम देखते हैं वहां पे साफ तरीके से लिखा हुआ है कि वो संसार जो हमको सब विश्वासियों को बैर रखता है, उसको तो वो मसीह को भी बैर रखता है। What does the verse 20 tells? It starts with one important word. A word. It tells us that remember. और हम देखते हैं 20 वचन में क्या वो 20 वचन हमको बता रहा है, और वहां पे जो पहला शब्द निकल के आ रहा है, याद रखो, रिमेम्बर। Remember the word that I said to you. और वहां पे हम देखते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, याद रखो। A servant is not greater than his master. और वहां पे लिखा हुआ है कि जो दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता। If then the Lord says, if they persecuted me, they will also persecute you. और उसके बाद हम देखते हैं लिखा हुआ है कि इस दुनिया ने मुझे सताया है, तो तुम भी सताओ जाओगे। Beloved brothers and sisters, 2000 years before, the Lord has said that about the persecution. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2000 साल पहले प्रभु ने वहां पे बोल दिया था कि सताव के बारे में। We blame Narendra Modi for this, for the persecution. और हम इसके लिए नरेंद्र मोदी को उनके ऊपर बोलते हैं कि वो सता रहे हैं। No, no, beloved brothers and sisters, no matter there is BJP, there is Congress, no matter which government is ruling, it is persecution is the part of the Christians. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ भी हो, या फिर बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अन्य पार्टी हो, लेकिन जो सताव है वो मसीही लोगों के लिए, मसीही लोगों को जुड़ा हुआ शब्द है, सताव। One small ant-like reason may be because of BJP persecution is there, but persecution has existed for the believers from 2000 years before. और हम देखते हैं कि आज के समय में भी, और हम देखते हैं 2000 साल पहले भी सताव था, वो मसीही लोगों के लिए वहां पे भी था और आज भी है। If in 2000 years before, if there would have not been persecution, the people would have not crucified the Lord Jesus Christ. और अगर हम देखते हैं 2000 साल पहले यदि सताव नहीं था, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर नहीं चढ़ाए जाते। If the Christians were of the world would have not hated us. और अगर हम देखते हैं जो विश्वासी लोग हैं उस समय पे संसार के साथ रहे थे, तो आज संसार हमारे साथ अच्छे से रहता। Beloved brothers and sisters, but we need to be a witness in the society. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम आज के समय में जो समाज में देखते हैं, अनुभव करते हैं। There are hundreds of festivals of the non-believers.
और वहां पे हम 100 से ज्यादा त्योहारों को देखते हैं अन्य विश्वासी लोगों का। Some may ask you money for the contribution और हम देखते हैं उस त्योहार के लिए जो लोग हैं इकट्ठा चंदा इकट्ठा करते हैं। to celebrate their festival. और वो ताकि वो अपने त्योहार को मना सके। We may face persecution when we say no to them. और अगर हम उन व्यक्ति को जो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उनको हिस्सा नहीं देंगे, तो हमको सताव का सामना करना पड़ेगा। And beloved brothers and sisters, because of the fear of persecution, because of the fear to get the relationship spoiled, we give the money. और हम देखते हैं प्यारे भाई और बहनों, और हम उस डर के कारण और कि सताव होगा, और हम जो भय के कारण हमको वो कार्य को करना पड़ता है, हमको चंदा देना पड़ता है। If we do so, we lose reward from God. और अगर हम वो कार्य करते हैं, तो हम प्रभु के राज्य में उस इनाम को पाने के लिए हम पाने में पीछे हट जाएंगे। Beloved brothers and sisters, one thing every believer should do is to learn to say no to the worldly people. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी विश्वासियों को एक चीज हमेशा सीखनी है कि आप इस दुनिया को ना कहना सीखिए। No to attend any of their idol worshipping programs. और ना आप कहना सीखिए कि आप कोई भी मूर्ति पूजा के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। No to say to give money, और आपको ना कहना है कि पैसे देने में। and no to say to have a fellowship with non-believers. और आपको ना करना है कि अन्य विश्वासी लोगों के साथ संगति करने में। Beloved brothers and sisters, every believer should have a fellowship with other believers. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको विश्वासी के साथ ही हमको संगति करना है। We'll read one verse which we read already, John 15, verse 18 and 19. We will read again. I would request brother to read in Hindi. और हम योना उसका 15 अध्याय उसका 18 19 फिर से पढ़ेंगे, और हम पढ़ भी चुके हैं। तो आइए हम पढ़ेंगे। यदि संसार तुमसे बैर रखता है, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर भी रखा। यदि तुम संसार के होते तो उस पर संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। Christians do not belong to the world. I read this verse again just to remind all believers who have joined today that Christians do not belong to the world. और हम देखते हैं इस वचन में लिखा हुआ है कि जो मसीही लोग हैं, वो इस दुनिया के नहीं हैं और दुनिया का को नहीं दर्शाते हैं। Which is why the world is engaged. Which is why the world is engaged in Christian persecution. और क्योंकि ये दुनिया मसीही लोगों को सताने के लिए जुड़ी है हुई है। We'll read one verse. First Peter chapter 4, और आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्र उसका 4 अध्याय। First Peter chapter 4, verse 3 and 4. और हम पहला पत्र उसका 4 अध्याय 3 और 4 वचन पढ़ेंगे। और वहां पे लिखा हुआ है, यदि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला, कीड़ा कीड़ा पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में यहाँ तक हमने पहले समय गवाया, वही बहुत हुआ। इसमें से वे अचंबा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ देते नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। Here it says that we have spent enough enough of our past lifetime on in doctrine, the will of the Gentiles, when we walked in lewdness and lust, drunkenness, and various things is mentioned here.
और हम यहाँ पे जो वचन के अनुसार देखते हैं 3 अध्याय में कि क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषा और बहुत सारी यहाँ पे जो अभिलाषा है, लीला क्रीड़ा है, पियक्कड़पन है और घृणित मूर्ति पूजा है, बहुत सारी चीजों को लिखा हुआ है। It was a past life, beloved. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमारा पिछला जीवन का जीवन है। And because we changed our life and we became the followers of Christ, the world hates that because we have been separated from them. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि ये हमारा जो पुराना समय का जीवन है, इसको बदल के हम प्रभु में आ गए और हमारा जो जीवन अच्छा और नया हो गया, उस कारण जो संसार के लोग हैं हमसे अलग हो गए और इसीलिए हम सताव का सामना करते हैं। We are motivated by the love of God and His holiness. और हम प्रभु की ओर से, प्रभु की प्रेम की ओर से हमको एक हिम्मत मिलता है और हमको एक कार्य को करने का सामर्थ्य मिलता है, और पवित्र आत्मा की ओर से भी हमको हिम्मत मिलता है। And the world is driven by love of sin. और जो शब्द है वो जो प्रेम का जो पाप है उसके का उसको बनाया हुआ है, उधर ही से उस शब्द को बनाया It is हुआ है। that very separation from the world that arouses the world's animosity. और हम देखते हैं जो अलग कर अर्नक संसार से अलग हुए लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं, वो वहां पे भी उस शब्द का अर्थ हम देखते हैं। Christians must learn to recognize the value of persecution and even to rejoice in it. और हम देखते हैं कि जो हमारे जो विश्वासी लोग हैं उनको जो सताव की स्थिति में भी खुश रहना, उनको सीखना चाहिए, ताकि वो अच्छी रीति से उस सताव का सामना भी करें और खुश भी रहें। Christians must learn to recognize the value of persecution. और मसीही लोगों को उस जो सताव का जो वैल्यू है, उस सताव की जो कीमत है, उसको उनको पता होना चाहिए। और आनंद से सताव सहना है। और आनंद से सताव रहना। Yes। And even to rejoice. और आनंद के साथ रहना है। Beloved brothers and sisters, if Stephanus would have not been persecuted by the people, if he was not stoned, he would have not seen the glory of the Lord Jesus Christ. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो स्टेफिनोस है, उनको यदि सताव का सामना वो नहीं करते तो आज वो प्रभु के अच्छी रीति से उनका पीछा उनके साथ नहीं होते। Please repeat again, brother. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम जो स्टेफिनस है, अगर वो सताव का सामना नहीं करते तो जब उनको जो सताव हो रहा था Talking उसके about Stephanus, स्टेफिनस। Saint Stephanus, you know, who was stoned and killed. In the Bible, और it is mentioned. जो जो स्टेफिनस, संत स्टेफिनस है, वो उनको पत्थर मार मार के उनको मार डाला गया था। If he would have not stoned, yeah, he would have not seen the glory of the Lord Jesus Christ. और अगर उनको उस सताप का सामना नहीं करते तो आज वो प्रभु का महिमा को महसूस नहीं कर पाते। What did he see? और उन्होंने क्या देखा? In the sky, he saw the Lord Jesus Christ standing. और उन्होंने देखा कि आसमान में बादलों में प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए हैं। That means Lord is welcoming Stephen's spirit into his kingdom. और हम इसका मतलब देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह है, स्तिफनुस की जो आत्मा को का स्वागत कर रहे हैं अपने राज्य में। What a glorious moment, beloved brothers and sisters. और कितना महिमा में समय होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। What a glorious and wonderful moment it would be, it would have been, that Stephenus seeing the Lord Jesus Christ. और ये कितना महिमा में और अद्भुत समय होगा उस समय जब स्तिफनुस है जो प्रभु को देख पा रहे हैं। It encourages us to face all any kind of situations. और ये हमको प्रोत्साहन करता है कि हम कोई भी समय को स्थिति को सामना कर दे पाए। And second important thing is that, as I said, we need to learn
to recognize the value of persecution, और how we दूस, need to learn to recognize और and to दूसरी rejoice. It should be quietly and humbly. दूसरी बात, खास बात को हम देखते हैं कि हम कैसे उस सताप का उस देख सकते हैं, कि कैसे पहचान सकते हैं, ताकि हम एकदम हम नम्र रह के और शांत रह के। If anyone slaps us, we cannot slap him back और for the अगर कोई word of God. अगर कोई व्यक्ति हमको एक गाल पर थप्पड़ मारे, तो हमको उसको दोबारा थप्पड़ नहीं मारना है, ये वचन में लिखा हुआ है। As Peter, as Lord's disciple cut the ear of the soldier because he came to arrest the Lord Jesus Christ. और हम बाइबल में वचन के अनुसार देखते हैं कि जो पतरस है, प्रभु के एक चेले में से, उन्होंने एक व्यक्ति उस सेना का कान काट दिया था, कि वो प्रभु को अरेस्ट करने के लिए आए थे, उनको गिरफ्तार करने के It लिए was आए थे। not used for that purpose. और वहां पे ऐसा मतलब के लिए हमको इस्तेमाल नहीं करना है। Lord doesn't permit us to do action. और प्रभु हमको अनुमति नहीं देते हैं उस कार्य को करने के लिए। Lord says that He will do action. We need to only work for the Lord. और वहां पे प्रभु बोलते हैं कि तुमको कार्य करने की जरूरत नहीं है, तुमको बस मसीह का के साथ और उनका कार्य को करना है। Beloved brothers and sisters, we will see some of the points of persecution has a great spiritual value. और आइए हम प्यारे भाई और बहनों, इस हम कुछ बातों को, कुछ बिंदु को देखेंगे कि जो सताव है, और क्या सताव का के कारण हम देख सकते हैं इट्स। The persecution of Christians allows us to share a unique fellowship with the Lord. और हम देखते हैं जो सताव जब होता है, तब हम Should I short the word sentence, or you can translate it? शॉर्ट। I will shorten. I will tell once again. ओके। First point is the persecution of Christians और पहली बात हम देखते हैं जो जो मसीही लोगों का सताव होता है, allows us to share in a unique fellowship with the Lord. और वो हमको अनुमति देता है कि हम प्रभु के साथ एक अद्भुत संगति करने पाए। Lord experienced the persecution. और जब हम उस सताव का सामना करते हैं, Lord has experienced the persecution प्रभु ने जब उस सताव का सामना किया था, for the sake of the mankind, और हम सब मनुष्य जातियों के लिए, and we also are persecuted for the sake of the Lord. और इस कारण हम भी प्रभु के लिए सताव का सामना करें, We are in fellowship with the Lord Jesus Christ. और उस कारण हम प्रभु के साथ अच्छी संगति और अद्भुत संगति में रह सकते हैं। Beloved brothers and sisters, और मेरे प्यारे and भाई, open our Bible to Philippians chapter 3 verse 8. और हम फिलिपियो की पुस्तक में जाएंगे, और उनका 3 अध्याय उसका 8 वचन में वहां पे लिखा हुआ है। अंकल, फिलिपियो 3 वर्स 8। ये ब्रदर पढ़े। अंकल, फिलिपियो 3 वर्स 8 है ना? Philippians chapter 3 verse 8. यस। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। Yet indeed I also count all things all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all the things, and count them as rubbish, that I may gain Christ. Paul, Paul has become very much encouraging to me. The ministry of Paul has encouraged me a lot.
और हम देखते हैं जब जो पौलुस अपना सेवकाई को करते हैं वो अंकल के लिए काफी प्रोत्साहन के रूप में अंकल उसको देखते हैं। You say that in front of Christ, all the worldly things are rubbish. और हम देखते हैं कि वहां पे वो बोलते हैं कि प्रभु के सामने ये सब कुछ कूड़ा है। Properties, money, relationship, father, mother, brother, sister, all are rubbish in the sight of in our sight for the Lord's sake. और जो हम देखते हैं कि जो प्रॉपर्टी है, पैसा है, रिश्ते हैं, रिश्तेदार है, माता पिता और भी अन्य जो संसार में चीजें हैं वो सब कुछ प्रभु के सामने वो सब कुछ कूड़ा है। So, beloved sisters, are we ready to um, share the persecution with the Lord? और मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आप तैयार हैं कि आप मसीह के साथ उस सताप को सहने के लिए? Here in this verse in Philippians chapter 3, verse 8, Paul outlined the number of things he had surrendered. और हम देखते हैं जो फिलिपियों का 3 अध्याय उसका 8 वचन में कि बहुत सारे जो पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। For the cause of Christ. और हम देखते हैं कि जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। Such losses he viewed as he considered as rubbish things. और हम देखते हैं कि जिसके कारण सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। Why he considered everything rubbish? और वहां पे ये क्यों इस सब कुछ चीजों को कूड़ा समझ रहे हैं? That he might share in the fellowship of Christ. ताकि वो मसीह के साथ संगति करने पाए। Fellowship with Christ means fellowship with Christ's suffering. और जो मसीह के साथ संगति करने का मतलब है मसीह की जो पीड़ा है उसको भी उसका भी उसके साथ भी रहना। Beloved brothers and sisters, how wonderful it is that to have a fellowship with Christ's suffering. और ये कितना अद्भुत कार्य है मेरे प्यारे भाई और बहनों की हम मसीही की जो पीड़ा है उसके साथ भी संगति करना चाहते हैं। Paul also counted his change as a grace. और यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस ने बताया है कि वो उस समय वो गिरेफ से कैसे जो बदले। Paul, when he was in jail, when he was chained, और हम देखते हैं कि पौलुस जब जेल में थे तो वहां से उनका कितना जो जो बदले हैं वो वहां पे। he was singing and praising Lord और सिर्फ जो प्रभु की महिमा करना और प्रभु के लिए गीत को गाना। because he considered it as a grace that God had bestowed upon him. और हम देखते हैं क्योंकि जो पौलुस वहां पे उस चीज को देख रहे हैं कि मैं वहां से उठाया गया हूं और मुझको पूरा मैं जीवन बदल गया है मेरा। We'll read one verse, Philippians chapter 1, verse 7. और हम एक वचन और पढ़ेंगे फिलिप्पियों का 1 अध्याय उसका 7 वचन। वहां पे लिखा That हुआ है। was it right for me to think this of you all, inasmuch as both in my change and in the defense and confirmation of the gospel, you all are partakers with me of grace. और वहां पे लिखा हुआ है उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं क्योंकि तुमने मेरे मन में अवश्य हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्राण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। So, beloved brothers and sisters, और मेरे प्यारे भाई और बहनों, firstly, what should we see? That the persecution of Christians allows us to share in a unique fellowship with Christ. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, पहली चीज हमने देखी कैसे जो सताव है मसीही लोगों के लिए वो कैसे प्रभु के साथ अद्भुत संगति का कारण बन सकता है।
Now we will see the second point. और आइए हम दूसरे बात को देखेंगे। Persecution. With persecution, we all become true followers of Christ. और हम देखते हैं कि क्यों पर से जो उस सताव के कारण हम सच्चे ही मसीह के चलने वाले हो सकते हैं। Christian persecution is good for believers. और जो मसीह में सताव जो विश्वासियों के लिए एक बहुत अच्छी बात होती है। Why it is good for the believers? और ये क्यों अच्छी बात होती है? Because we become the partakers with Christ in his suffering. और क्योंकि हम देखते हैं कि हम मसीह की जो पीड़ा में सहभागी हो जाते हैं। We'll read one verse, और आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। James chapter 1, हम याकूब उसका पहला अध्याय verse 2 to 4. और 2 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। और वहां पे लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। Dear beloved and sisters, this time, due to shortage of time, I'm not reading in English. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, समय के कारण हम इंग्लिश में नहीं पढ़ रहे हैं। James argues that trials test the Christian faith. और वहां पे जो याकूब है तर्क कर रहे हैं मसीही विश्वास के ऊपर। It develops endurance. और वहां पे एक एक धीरज को बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। Testing of faith, और अब यदि हम विश्वास की परीक्षा देखते हैं, the testing of faith and developing endurance हम वहां पे विश्वास की जो परीक्षा को और धैर्य को देख रहे हैं। produces it helps to develop maturity. और उसके कारण हम एक मानसिक स्थिति में अच्छा स्तर पे पहुंचने के लिए एक हम बढ़ते जा रहे हैं। As steel is tempered in the forge, और अगर हम एक कील को जो दीवार में डाल लगाएंगे, trials and persecution serve to strengthen the character of the believers. और उसी कारण हम देख सकते हैं जो सताव है और जो दर्द है वो एक मसीही जीवन के लिए एक गुण के रूप में हम देख सकते हैं। A Christian yielding graciously to persecution और हम देखते हैं जो मसीही लोग हैं वो परसिक्यू जो सताव को और को देखते हैं। a Christian yielding, experiencing graciously to persecution, और अगर कोई मसीही जो उस उपज को सताव की उपज को देखते हैं, it demonstrates that he is of superior quality as compared to his adversaries. और उसके कारण वो व्यक्ति समझ सकता है कि उसके पास एक अद्भुत और बहुत जाना महत्वपूर्ण गुण है वो मसीही जीवन में उसके पास, जो उनके विरोधियों में नहीं है, जो उनके विरोधियों में नहीं है, adversaries. जो उनके विरोधियों में नहीं है। Hebrews chapter 11, verse 38. और जब इब्रानी उसका 11 अध्याय उसका 13 वचन को हम पढ़ते हैं, Hebrews chapter 11, verse 38. और इब्रानी उसका 11 अध्याय उसका 38 वचन को हम देखते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और प्रभु और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। Yeah, what does the word say? और यहाँ पे क्या वचन बोल रहा है? I'll read once. Hebrews chapter 11, verse 38. Of और whom the world was not worthy, they wandered in deserts and mountains, in dens and caves of the earth.
Here, beloved brothers and sisters, what it says, और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन हमको क्या बोल रहा है? those who don't follow their situation, it is telling us. और जो जो व्यक्ति जो मसीह के जीवन को नहीं चलते हैं, उनका जो जीवन है वो बता रहे हैं, उनका जो स्थिति को It बता is, रहे हैं आप। it is, it is easy to be hateful, और ये हम देखते हैं कि अ, जो बैर रखने वाला चीज है, but Christ likeness produces kindness and blessing in the face of evil opposition. और हम कोई भी यदि बुरा कार्य में जो प्रभु का जो प्रेम है, प्रभु का जो कार्य है, और प्रभु में अगर हम चलते हैं तो उनके कारण हम ये सब चीजों में नहीं भटकते। So here we see that we are tested in persecution. और इस कारण से हम यहाँ पे एक बात को जानते हैं कि हम उस सताव के कारण हमारी परीक्षा होती है। Third point, what it tells, और तीसरा जो बिंदु है हमको वहां पे बताता है। I will take 5 minutes, beloved brothers and sisters. I'm और sorry for अभी that. और अंकल अंकल जी अभी 5 मिनट और लेना चाहते हैं। Christian persecution enables believers to better value the support of true friends. और हम देखते हैं जो सताव है उसके कारण जो मसीह लोगों के लिए एक अद्भुत जो चीज है वो अलाउ होती है, अनुमति मिल जाती है कि वो अच्छी रीति से मसीह में चलने पाए। और जो Beloved brothers and sisters, I would like to tell few verses, few points with regard to persecution. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम कुछ बिंदुओं को देखेंगे सताव के साथ में, सताव के लिए विषय में। With persecution, we should not get afraid. और जो सताव है उसके कारण हमको भयभीत नहीं होना है। Persecution, when there is a persecution, the Lord is with us. और जब अगर कभी भी सताव हमारे सामने हो रहा होगा तो याद रखना, परमेश्वर हमारे प्रभु हमारे साथ है। Those who persecute you, don't hate them, और because the जो word of God says, love your enemies. और जो कोई आपको सताव करता है तो आप उससे कभी भी बैर ना रखें, क्योंकि वचन हमको बताता है कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखो। Nowadays, many people have started hating Narendra Modi. और इस कारण से हम देखते हैं कि आज के समय बहुत सारे लोग जो नरेंद्र मोदी है उनको बैर रखने लगे हैं उनको। Beloved brothers and sisters, if the persecution will not increase, the Lord's coming will tarry more. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर जो सताव है नहीं बढ़ेगा तो प्रभु का आने में देरी बढ़ती जाएगी। So the persecution, we should love our enemies and we should love the persecution. और हमको याद रखना है कि हमको हमेशा अपने दुश्मनों से ही प्रेम रखना है, और सताव को भी हमेशा प्रेम रखना है, सताव को भी हमेशा सहना है। And dear brothers and sisters, there are some important qualities which will help us to avoid persecution. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ जो गुण होते हैं उसके कारण हम जो सताव को हटा सकते हैं, सताव को नजरअंदाज कर सकते हैं। सताव सताव से थोड़ी बहुत हम बच सकते हैं. सताव से हम थोड़ा बहुत बच सकते हैं। When you are distributing tract, और अगर आप कभी भी जो प्रभु का वचन बांटते हैं, पत्रिकाएं बांटते हैं, पत्रिकाएं बांटते हैं, or when we are sharing the scriptures with the other, with the non-believers, और आप कभी भी जो अन्य विश्वासी लोगों को प्रभु का जो पुस्तक उसको देते हैं या फिर पत्रिका को बांटते हैं, first you need to pray before you leave the house. और आप उससे पहले आपको हमेशा प्रार्थना करना है। Pray to have a God's presence with you. और हमको आपको हमेशा प्रार्थना करना है कि प्रभु का जो प्रभु आपके साथ उपस्थित रहे। Second important thing is that you और should दूसरी be well dressed when you are going to God's throne.
और दूसरी जो मुख्य बात है, आपको हमेशा याद रखना है कि आपको जब भी आप जाएं, I have seen many believers going to this gospel work or track distribution work in a very ordinary way, as if they are sleeping and getting involved. और हमने बहुत सारा अंकल ने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि जब भी वो प्रभु का वचन को या फिर पत्रिका को बांटने जाते हैं तो काफी साधारण रीति से चले जाते हैं। Well dressed up will change the mindset of the non-believer. और आपको हमेशा एक अच्छी रीति से अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के, और आपको हमेशा ऐसे रहना है, क्योंकि सामने वाले का आप एक मन को परिवर्तन भी कर सकते हैं। Do not do gospel when the world is celebrating their festivals, और आपको कभी भी उस समय प्रचार नहीं करना है जिस समय दुनिया अपना त्योहार मना रही होती है। because they think that we are opposing their religion. और क्योंकि दुनिया सोचती है, संसार सोचता है कि हम उनका जो धर्म को दुश्मन के रूप में बता रहे हैं, कि धर्म को हम ओपोजिशन कर रहे हैं। I would like to share one experience. और अंकल जी हमारे बीच में एक उदाहरण को एक अनुभव को I शेयर कर and सकते my हैं। church brothers, two, three brothers, we decided to share the gospel tract distribution on one Sunday. और अंकल जी ने अपने जो दो सहभागी लोगों को, विश्वासी लोगों को साथ में लिया, और उन्होंने डिसाइड किया कि एक समय पे वो परमेश्वर का सुसमाचार बांटने के लिए जाएंगे। And we decided one place. We every Sunday we used to decide a place and go and distribute tracts. और उन्होंने वहां पे एक समय को निर्धारित किया, और हर रविवार को वो एक निर्धारित जगह पे जाके सुसमाचार को करते हैं। इस बार भी उन्होंने उस समय को, उस जगह को निर्धारित किया। And we went over there और जब वो वहां पे गए, and we got down from the auto और जब अंकल सब उस ऑटो से बाहर निकले, and we are saying is that there was a festival of non-believers. और वहां पे उन्होंने देखा कि अन्य जाति लोगों का त्योहार चल रहा है। It was a Shiv Jayanti, Shivaji's festival. और अन्य विश्वासी लोगों का जो त्योहार था, वो उनके लिए जो शिवाजी का त्योहार चल रहा था। All flags, their flags were put on the road और हम about as a banners. और बहुत सारे बैनर और बहुत सारे झंडे वहां पे वो लोग के पास थे। We plan to go away from that और place, अंकल अंकल जी ने और सभी ने वहां पे सोचा कि यहाँ से दूर चले जाएं। but later somehow we thought some brothers who were with us. They told us we have come, so we will distribute tracts and we will go. और वहां पे उन्होंने निर्धारित किया कि अभी आए हैं, तो वहां पे परमेश्वर का जो पुस्तक है, पत्रिका है, उसको बांटने के बाद चले जाएंगे। And what happened, beloved brothers? और उसके बाद क्या हुआ, प्रिय भाई और बहनों? Some boys beat one of our church brothers very badly. और वहां पे देखते हैं कि बहुत सारे वहां के जो लड़कों ने, लोगों ने एक जो अंकल के साथ में जो भाई थे उनको बहुत मारा। We had to run away from that place. और उसके बाद सभी लोग वहां से चले गए। So, beloved brothers and sisters, when we decide any day, date, time, we need to see that in that place any festival is going on. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप भी कोई निर्धारित समय को तय करते हैं, तो उस समय पे आपको ध्यान रखना है कि कोई भी त्योहार ना हो रहा हो, और त्योहार के समय पे ना करें। When you share the gospel, do not criticize non-believers' gods. और अगर आप जब भी उस वचन को, आप उस पत्रिका को लोगों के बीच में बांटते हैं, प्रभु का वचन को, तो आपको कभी भी किसी दूसरे अन्य विश्वासी लोगों के भगवान की बुराई नहीं करनी है। You purely share the gospel about the Lord Jesus Christ coming on the earth, his suffering, his crucifixion, and his resurrection. और आपको बस सिर्फ सुसमाचार को बांटना है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए, हमारे लिए मारे गए,
और हमको बचाया, उद्धार दिया, और वो फिर से आने वाले हैं। Do not compare their God with our God. और कभी भी आप अपने जो प्रभु यीशु मसीह की तुलना, प्रभु की तुलना किसी और के अन्य विश्वासी लोगों के भगवान के में ना करें। Because their God is not worthy to be compared to our Lord. और क्योंकि उनके जो भगवान है, उनका अन्य विश्वासी लोगों के जो भगवान है, कभी भी प्रभु के बराबर नहीं हो सकते। Because they do not, they have no God. Just it is their imagination that the stone is set and they worship as a God. और क्योंकि वो कोई भगवान नहीं है उनके पास, वो सिर्फ एक मूर्ति पूजा के रूप में एक मूर्ति रख लेते हैं और उसका जो पूजा करते हैं अपने मन में, सोच में। It is their imagination just. और इनकी ये सिर्फ सोच है। The word of God tells now the I, those who make the idols are like the idols. और हम देखते हैं कि वचन बोलता है जो व्यक्ति जो मूर्ति की पूजा करते हैं। So, beloved and sisters, may God help us to share the gospel in all situations, and may God help us to endure the persecution. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपको सहायता करे, और आप इस सप्ताह में जब जाते हो तो आपको उस समय आपको धीरज रखना है, और प्रभु आपको धीरज रखे, धीरज दे कि आप उस समय का सामना करने पाए। I am very sorry for taking 5 more minutes extra. और मैं बहुत माफी चाहता हूँ कि मैंने कुछ समय जाना ले लिया। All glory, honor, and praise be to our loving Lord Jesus Christ. और Amen. सारी